Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, today we are going to start our first lesson of SST, the first chapter, which is included in our half yearly exam. Okay? You all know pretty well that your first unit test has been postponed. So, a time span is there. So, let's start our half yearly exam syllabus. First chapter of history, lesson 3. The first farmers and herders. Now, what are farmers? Farmers means the people who used to cultivate the land and who used to do the farming. चाशी, चाष करा, ठीक है. किसान, किसानों को कहते हैं फार्मर्स. ठीक है. पहले फार्मर्स, पहले लोग जो फार्मिंग करना शुरू किए थे. और हर्डर्स, हर्डर्स मतलब जब लोग एक साथ रहना शुरू कर दिए. व्हेन दे फाउंड दैट इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट टू लिव टुगेदर अपार्ट फ्रॉम लिविंग अलोन. आइसोलेटेडली रहने से एक साथ रहना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. जब इंसान को इस बात का पता चला तब वो एक साथ रहने लगे. In this lesson we are going to read about that. So let's start. Actually, Old Stone Age and Middle Stone Age, people were not conscious about, or they were not so much known about the fact of living together and the benefits of living together, right? So the process of living together or the process of becoming herders, it started in the Neolithic period. Neolithic means the new Stone Age. You all know that. The Mesolithic age gave way to the Neolithic age about 10,000 to 12,000 years ago. 10 साल से 12 साल पहले मेसोलिथिक एज ने नियोलिथिक एज को स्पेस दिया था. A number of important changes took place during this age. इस एज में बहुत सारे important changes they have taken place. नए नए changes आए. इंसानों को नए नए तरीके से जीना, रहना, चाल चलन, कपड़ा पहनना, खाना खाना, सब कुछ इंसान ने सीखा. A number of important changes took place during this age. The earth became warmer and the ice that covered the large part of the land started melting. क्या हुआ? The earth was completely covered with ice. बर्फ से घिरा हुआ था. And as this age started, so the melting of the ice, the process of melting ice also started. Plant and animals became abundant. Abundant, less, कम, घटने लगे, कम होने लगे. Humans learned to grow their own food and started settling down in one place. इंसानों को अपना crops, अपना food तैयार करना सीख गए वो लोग. And they started to settle down or started to live in one particular place. कुछ नए नए इन्वेंशंस हुए जैसे व्हील, फायर, पॉटरी. और इन लोगों से लोगों का रहन सहन, लोगों का खाना पीना, उठना बैठना, चाल चलन, देयर वाज अ ह्यूज चेंज इन दैट. नेचुरली जब कुछ नहीं था तब इंसानों का रहना, और जब धीरे धीरे सारी चीज़ें उनको मिलती रहीं तो उनका रहना, दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस. एंड सो द थिंग्स वेर गेटिंग चेंज्ड. The impact of these changes was so dramatic. Dramatic मतलब something जिसको देख के तुम्हें लगता हो कि अरे ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ. Something like that. That is called dramatic. That this period of human development came to be known as Neolithic Revolution. The changes was in a very short span of time and in a huge amount that people started to tell this or call this time Neolithic Revolution. क्या बोलते थे? नियोलिथिक रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन री इवैल्यूएशन, नए तरीके से कुछ सोचना. ओके. हाउएवर दीज चेंजेस डिड नॉट टेक प्लेस ओवरनाइट. एक रात की बात नहीं है. थोड़ा 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 करके इट टुक अ बिग टाइम
or a huge time span to bring a new thing in the lifestyle of human beings. They took place over thousands and thousands of years. They also occurred at different times in different parts of the world. Let us study some of the important achievement of this age. अब देखो, हजार हजार साल लगा टाइम इस नई चीज़ को इंसानों में आने में और इंसान को एक नई चीज़ के साथ अडेप्टेड होने में. ठीक है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट all these changes, how these changes take place in the life of human being in this era, in this Neolithic revolutionary era. Era means time. So let's see. First was farming. After leading a nomadic existence, nomadic मतलब when people doesn't have a specific area to live, एक जगह पर रहना, खाना पीना, फिक्स कोई प्लेस नहीं है. In search of food for millions of years around 10,000 to 12,000 years ago. 10,000 से 12,000 साल पहले इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था खाने की तलाश में. In search of food. Human beings began to grow their food. It is possible that they discover how to grow crops when they saw plants sprouting from seeds. हो सकता है जब इंसानों ने किसी सीड या किसी बीज के अंदर से पेड़ को उगते हुए देखा और धीरे धीरे उसका ग्रोथ नोटिस किया, तब उन लोगों को लगा कि अच्छा, अगर बीज के अंदर से पेड़ निकल सकता है तो अगर यही बीज हम किसी मिट्टी के अंदर गाड़ दें, वहाँ से भी पेड़ निकलेगा, उस पेड़ में फल होंगे, वो फल हम खा पाएंगे. तो इस तरह से अगर हम 5-7 बीज या उससे भी ज़्यादा बीज अगर ज़मीन में गाड़ दें तो बहुत सारे पेड़ निकलेंगे, उनमें से बहुत सारे फल होंगे, तो वो सारे फल हम खा पाएंगे. तो हम लोगों को जगह जगह पर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अंडरस्टैंड? द फर्स्ट क्रॉप ग्रोन वेर wheat and barley. Later, oats, rice and fruits were also grown. सबसे पहला फल और पहला क्रॉप जो उन लोगों ने कल्टिवेट किया वो था wheat और barley. उसके बाद oats, rice, fruits. जैसे जैसे दिन गए, they started the cultivation in a huge and elaborated way, बड़े आकार में. उसके बाद आया डोमेस्टिक हंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड हर्डिंग. वाइल फॉसल्स हैव ग्रोन सम मोर एनिमल्स. फॉसल्स मतलब हाड़गोड़, कंकाल, हड्डियाँ. स्पेशली डॉग्स हैड बिगन टू बी टेम्ड इवन ड्यूरिंग द लेट पैलियोलिथिक एज, मतलब ओल्ड स्टोन एज. अदर एनिमल केम टू बी डोमेस्टिकेटेड फ्रॉम नियोलिथिक एज. एनिमल्स लाइक काउ, buffalo, bull, donkey, goat and sheep were being tamed. Tamed मतलब डरा के रखना. Tamed मतलब डरा के रखना. वो लोग डराते थे और डरा कर उन पशुओं को अपने कंट्रोल में रखते थे. ठीक है, कंट्रोल में रखते थे क्योंकि वो सीख गए थे पशुओं को डराना. पहले वो जानते नहीं थे, बाद में वो सीख गए थे. उसके बाद उन्होंने देखा कि बाय टेमिंग द एनिमल्स वी आर गेटिंग फ्लैश, वी आर गेटिंग मीट, वी आर गेटिंग एग. एक साथ 3 चीज़ों का मिलना, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ जोक. ठीक है ना? एंड मिल्क गिव्स अस enormous amount of protein. We all know that. As the number of animals each family owned grew, herding developed. जैसे जैसे फैमिली में मेंबर्स बढ़ते गए, वो लोग बड़े होते गए, एक साथ रहते गए, तो उन लोगों में ग्रुपिज्म आ गया. ग्रुपिज्म मतलब एक साथ 4-5 जन बैठ के बात करें, वो नहीं. ग्रुपिज्म मतलब दे स्टार्टेड टू लिव इन ग्रुप्स, दे स्टार्टेड टू लिव यूनाइटेडली एंड दे स्टार्टेड टू लिव टुगेदर, विच ब्रॉट अ ह्यूज स्ट्रेंथ इन देयर living. The animals had to be taken care of as a group, fed and sheltered. The herd also had to be moved from place to place in search of fresh fodder. जैसे जैसे फैमिली मेम्बर्स बढ़ते गए, छोटे घर या छोटे टेंट, उनको they found that it is not enough space for us to live together, so we need a huge big area. और मेंबर्स बढ़ते गए, उन लोगों का एरिया चेंज होते गया, उन लोगों का रहना चेंज होते गया. इसके बाद आया शेल्टर. शेल्टर एक जगह पर रहना जहाँ पर इंसान रहता है. छोटे जगह पर रहना पहले उन लोगों को कन्वीनियंट लगा. बाद में जब लोग बढ़ते गए,
मेंबर बढ़ते गए, उन लोगों का स्टाइल ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ habitating, style of moving, that also changed. Once people learned to grow food and domesticate animals, they began to settle down in larger groups in permanent dwelling. पहले ये लोग टेम्पररीली रहते थे, एक जगह रहते थे, उसके बाद शिफ्ट हो जाते थे दूसरी जगह. लेकिन जैसे जैसे मेंबर बढ़ते गए, मेंबर बड़े होते गए, मतलब बच्चे बड़े होते गए, तो उन लोगों को लगा कि नहीं, घूम घूम के इस तरह से वी कैन नॉट हैव अ हेल्दी लाइफ. सो हम लोगों को एक जगह पे रहना है और टुगेदरली रहना है. लेट्स सेटल डाउन, हैव अ परमानेंट शेल्टर, दैट विल बी मच मोर कन्वीनियंट. एक्चुअली टेम्पररी शेल्टर मतलब क्या, अगर तुम लकड़ी बंगाली में जिसको बोलते हैं बेड़ार घर, हे से अगर तुम घर बनाओ तो कोई भी एनिमल आके तोड़ ताड़ के उसको, इट कैन हार्म यू. लेकिन अगर तुम पक्का घर बनाओ with stones and cement and something rod like iron, so animals cannot enter and you will be much more safer. So they mostly did so close to river banks and other sources of water. They built houses out of mud brick, stone, reeds and strong branches of trees. The walls were often coated with plaster. Pitch houses were a regular feature of Neolithic age. यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ नहीं है, otherwise I would have shown. Anyways, I'll send pit house picture so that you can understand what is pit house. So धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, लोहे के बीम्स ले, स्टोन्स लिए, मिट्टी से ईंट बनाई, मोटे मोटे ब्रांचेस लिए और प्लास्टर कर दिया बाहर से. तो हाउस स्ट्रॉन्ग हो गया, तो neither animal nor other human being can easily enter the house. और इसलिए they started to live a very secure and healthy life. The invention of the wheel with the axle circle, wheel के बीचों बीच रहता है. देखो, I'm sending you showing you a picture. ये देखो, दिख रहा है? This is a wheel and this is the center axle. ये एक्सल है रेड. ये क्या करता है, व्हील को पकड़ के रखता है. होल्ड्स द व्हील. द व्हील व्हेन इन्वेंटेड इज बिलीव्ड टू हैव बीन इन्वेंटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नियोलिथिक एज. न्यू स्टोन एज एंड नियोलिथिक एज स्टार्टिंग के बिगिनिंग में ही व्हील का इन्वेंशन हो गया. अर्ली ह्यूमन्स वुड हैव सीन दैट ऑब्जेक्ट कुड मूव्ड मोर इजीली इफ प्लेस्ड ऑन समथिंग सिलेंड्रिकल लाइक अ लॉग. पहले उन्होंने देखा था अगर लॉग टाइप का कोई चीज़ है और हम लोग उसके ऊपर कुछ बिठा रहे हैं, सो इट इज़ ईजी टू मूव, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए. देन दे फाउंड व्हील. ठीक है. ओवर टाइम व्हेन व्हील्स वर एडेड ऑन आइदर साइड ऑफ द लॉग, मेकिंग इट पॉसिबल टू मूव ऑब्जेक्ट फास्टर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, दिस मार्क द बर्थ ऑफ द व्हील विद द एक्सल ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. ये था ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेंशन. क्या? इन्वेंशन ऑफ व्हील अलॉन्ग विद द एक्सल. अगर किसी सर्कल को हम बीच में एक राउंड टाइप ऑफ थिंग के ऊपर फिक्स कर दे, तो दिस विल मूव एंड द व्हील विल मूव लाइक दिस, एंड दिस विल होल्ड द सेंटर ऑफ दिस राउंड लाइक थिंग. इट विल होल्ड द व्हील एंड दे विल मूव लाइक दिस, मूविंग. राइट. यू कैन सी द टायर के बीच में भी एक्सल रहता है ना. तो सबसे पहले उसका इन्वेंशन न्यूलिथिक एज में हुआ था. ओके चिल्ड्रन, सो आई विल एंड टुडेज क्लास ओवर हियर. सो वी हैव लर्नड how the Neolithic age have changed the person of the style of life, and what were the changes that have been brought. First was farming, second was domesticating animals and started living herdingly or started to live a life of herders. Third, shelter, and fourth, invention of wheel with the axle. So invention of wheel I'll continue in my next session. Till then, go through this part and try to understand. And if you have any doubt, let me know. I'll repeat the specific part and continue our next session. Till then, be healthy. Bye-bye.